So we are reached up to complicated acute cholecystitis, जिसकी क्या आपने बात की थी, perforation, gangrene and everything like that. Sure. Next question is कि how will you diagnose that this patient has cholangitis? Sir, first points in history, there will be history of pain, there will be history of jaundice, and there will be history of fever. एक मिनट, somebody asked And me, on, एक मिनट रुकें, somebody has asked me कि what is the ID. So ID की मैंने शुरू में, मेरी अपनी ID होगी तो शुरू में तस्वीर ली थी, let me see in that, ताकि इनको बता दूं मैं. So it is N1, meeting passport is N128 SN128S5. G. So how are you doing cholangitis? sir, points in history, there will be history of biliary colic, pain, then there will be history of jaundice, and there will be history of fever. And typically the fever, intermittent jaundice and intermittent pain. These are the points. Then on examination, I will look for jaundice in eyes and tongue, as well as on skin and the urine. See, if I have to add something to it, I think cholangitis is also severe inflammation. Cholangitis is not a mild inflammation. Sure. But अगर severe inflammation है, तो signs, severity of inflammation के they would also be more, जो हमने पहले discuss किया. इसीलिए cholangitis in the liver, और liver का lower batch is palpable in subhepatic region, so right subcostal region नीचे. So even in cholangitis, you are going to get tenderness. There's going to be tenderness. May not be Murphy's sign, but tenderness. And by the way, you know what the Murphy sign is? Sure. ये Murphy sign क्या होता है? किस तरह करते हैं? Sir, it is usually on the gallbladder, fundus of the gallbladder, that is in the mid-clavicular line, below the costal margin. And then patient is asked to take a deep breath while he on inspiration he catches his breath when the gallbladder starts with the palpating thumb. बिल्कुल सही है. So therefore, बिल्कुल ठीक बात की. Murphy sign is not severe tenderness in right subcostal region or mid-clavicular line. Murphy sign is a sign. और उस साइन को ठीक आपने बताया कि what you do is you place your finger or your thumb, whatever you want to place, localized in mid-clavicular line, जहाँ पे आपकी right costal margin है. Ask the patient to take deep breath, or patient catches his breath because of as the fundus area that strikes your hand. ठीक. And what about pancreatitis? What are essentials of diagnosis of pancreatitis? For diagnosis of pancreatitis, there will be first of all the points in history. It will be a severe pain in the epigastric area that usually radiates to back and shoulders. It is sorry. It is severe pain and not relieved with the severe pain not relieved by usual doses of pain. Pain may be continuous. It may not be intermittent. It may last for even days without remitting. And then there can be history of gallstones, and there can be history of alcoholism. ठीक है. हम क्योंकि thank you. And again,
आपने अच्छी बात की, मगर हम चूंकि गॉल स्टोन्स के परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं, तो व्हाट आई मेंट वाज बिलियरी पेनक्रेटाइटिस, तो गॉल स्टोन की आपकी हिस्ट्री हो गई। देखिए सर पेनक्रेटाइटिस में भी पेन होगी, ये तमाम इंफ्लेमेशन के साइंस होंगे, इट्स स्वीयर इन्फ्लेमेशन, स्वीयर इन्फ्लेमेटरी साइंस होंगे। बट द पॉइंट इज दिस थिंग इज कि ऑल्दो इट इज स्वीयर इन्फ्लेमेशन, बट साइंस डू नॉट, क्लिनिकल एग्जामिनेशन जो है दैट डज नॉट पॉइंट टुवर्ड अ वेरी स्वीयर इन्फ्लेमेशन। वेरी इंटरेस्टिंग, एंड देयर इज अ रीजन। रीजन ये है कि पेनक्रियास इज प्रेजेंट इन रीट्रोपेरिटोनियल स्पेस, पीछे पेरिटोनियम के पीछे है, इसके ऊपर है स्टमक। अब आप इमेजिन करें कि एक गॉल ब्लैडर इन्फ्लेमेशन है, उसको आप फील कर रहे हैं, और एक गॉल ब्लैडर के ऊपर आपने तकिया रख दिया है और फिर इन्फ्लेमेशन फील कर रहे हैं, हाथ से टेंडरनेस फील कर रहे हैं। सो देयरफॉर with the equal amount of inflammation, gallbladder will be very tender, but pancreas won't be tender on clinical examination. उतना tenderness नहीं होगी. Therefore, they always say कि अगर आपके clinical signs do not correlate with the severity of symptoms, upper abdominal, यही sign pain abdominal वगैरह, think of pancreatitis. This is an important thing कि आपको ज़हन में रखनी चाहिए. अच्छा, जब ये चीजें अब आपके ज़हन में आ गई, तो इन तमाम चीजों को ज़हन में रखते हुए आपने जो डायग्नोसिस दिया हमें, वो ये दिया है कि पेशेंट हैज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ये दिया ना आपने, बिल्कुल ठीक है। एंड यू हैव गिवन दिस आर्गुमेंट, symptomatic gallstones complicated with acute cholecystitis. ठीक, बिल्कुल सही है। और यू कैन सिंपली से एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस आल्सो। मुफस्सल जवाब हमेशा अच्छा रहता है, अगर क्लैरिटी हो तो ठीक होगा। हाउ विल यू डायग्नोज द केस? What investigation you will do? Sir, I will do ultrasound of the hepatobiliary region to confirm my clinical findings, and I will look for thickness of the wall of. I will look for acoustic shadowing in gallbladder and in the neck region of the gallbladder. Thickness of the wall of the gallbladder, pericholecystic fluid, and whether the stone and the status of CBD, whether there is dilatation of intra-extrahepatic biliary channels, whether the stone will look for the head of pancreas, though ultrasound is not a very good investigation for pancreas, but it will give me an indirect evidence. And also I will look for then pericholecystic fluid or abscess or air in the wall of gallbladder. ठीक है, बहुत ठीक, आपने अच्छा जवाब दिया कि देखें एक इन्वेस्टिगेशन, आप देखें आपके जहन में जो चीजें हैं, once you do an investigation जब है तो the investigation is done for two purposes. Number one is to confirm the diagnosis and also to confirm provisional diagnosis में दूसरी वो नहीं है, दोनों चीजें जहन में रख के करवाई जाती हैं। So therefore, अल्ट्रासाउंड का आपको बता देगा, आपने ठीक, अल्ट्रासाउंड कोलिसिस्टाइटिस would be number one, gallbladder would be distended, जो आपने बात की. Number two, there could be stone in the gallbladder. There will be stone in the gallbladder. अगर हम बिलियरी की बात कर रहे हैं, कॉमनली होता है. स्टोन ना हो तो आपको स्लज मिल जाएगा. Sometimes very small stones can also cause, वो मिलते हैं, उसको आप स्लज का नाम दे देते हैं, इसको बिलियरी स्लज कह देते हैं. That would be there. Thickness of gallbladder wall, और चूंकि इन्फ्लेमेशन है वॉल की, तो when the fluid, inflammatory fluid comes into the wall, it separates the wall के दो जो layers हैं, and you can see the fluid within the wall. Then there could be fluid around the gallbladder. Then obviously you may see omentum, उसको mass बना हुआ है, that you can feel, and this way you are going to find this thing. और क्या इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? Sir, then I will do complete investigations for the general well-being, complete blood counts, and I will look for a total leukocyte count. ठीक है. And then serum amylase levels,
serum amylase levels, and liver function tests. बिल्कुल ठीक है, सीरम अमाइलेज लेवल कराना है क्योंकि पैनक्रेटाइटिस को देखने के लिए, और लिवर फंक्शन टेस्ट आपने करा लिए. एनीथिंग एल्स? Sir, I will also do ECG and X-ray chest because to rule out rare causes of pain in the epigastric area, hypochondrium, that is pneumonitis, pleuritic pain, or myocardial infarction. कुछ और बता सकते हैं ये आपको एक्सरे चेस्ट भी, जिसके लिए आप करवाना चाह रहे हो? It can X-ray erect chest can show me air under the right dome of diaphragm in cases of perforated peptic ulcer. You see now what your understanding is this thing, ये पूरी एक set of investigation है. तो contextually patient के मुताबिक पहले आपने वो बताई जो कि करानी चाहिए, और फिर आप थोड़ा चुप कर गए हैं क्योंकि बाकी आप समझते इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें तो गॉल्स में बड़े क्लियर आ गए हैं, हर चीज आ गई है. तो जब एग्जामिनर बात कर रहा हो कुछ और तो बेसिकली नाउ ही वांट्स यू टू टेल द लिस्ट और समथिंग लाइक दैट. तो इसलिए फिर आपने वो माइलेज भी बताया, फिर आपने एक्सरे चेस्ट बताया, और एक्सरे चेस्ट में आपने न्यूमोनाइटिस वो बता दी. मगर इंपॉर्टेंटली कॉम्प्लिकेटेड अगर है तो हम एयर अंडर डायफ्राम देखना चाहते हैं, तो वो भी आपने ज़हन में लेके आए, ईसीजी ले आए. सो दिस इज हाउ कॉन्टेक्चुअली जवाब देने का जो तरीका आप लर्न करते हैं वो इस तरह होता है. ठीक है, ये चीजें आगे. टुवर्ड्स द ट्रीटमेंट आपने क्या? Sir, I will do, sir, as the patient, the symptoms of the patient are getting worse. So I will do open cholecystectomy, and I will discuss it with the patient. And as discussed, the patient is not willing for open cholecystectomy, and she came from Mandi Bahauddin to Lahore for laparoscopic cholecystectomy. So I will refer her for laparoscopic center for laparoscopic cholecystectomy. Which type of open cholecystectomy? Sir, on the next available list, that will be so urgent. I am between urgent and emergency. This will be, sir, on the next available list. I don't know if it is urgent or emergency. I have confused. You don't know, as a doctor, you don't know it is urgent or emergency, and you're putting him in the next list. It will be urgent cholecystectomy, sir. Okay. How many types of cholecystectomies do you know? Sir, there are 3 types. With respect to time, बात कर रहे हैं. Yes, sir. Emergency cholecystectomy, then urgent cholecystectomy, and then elective cholecystectomy after 6 weeks. Anything else? What about early cholecystectomy? Sir, then early, yes, sir. Early cholecystectomy. अच्छा, इसके बिहाइंड एक कॉन्सेप्ट है, अगर आप उसको समझ जाएं तो इनके जवाब आपको पता समझना बड़े आसान हो जाएंगे. सर देखें, the intention of the surgeon is that one should operate and cure the disease without causing any harm to the patient. ये एक जनरल प्रिंसिपल है जिसपे हम सब मुत्तफिक हैं. And harm to the patient by iatrogenic harm, जो खुद कॉज कर रहा है. अब सर्जन का चूंकि दिल करता है कि सर्जरी में हार्म उस वक्त नहीं होगी जबकि एनाटॉमी क्लियर नजर आ रही हो. जब वो खोले कोई हर चीज क्लियर नजर आ रही हो, जाहिर सी बात है फिर तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ है कि इस चीज को इंजर करेगा. अगर कोई बहक के नहीं आया हुआ तो लादा बात है. ठीक. इलेक्टिव मीन्स बाय चॉइस. So therefore, elective cholecystectomy is when surgeon is doing by his own choice, कि जब वो आराम से कर सकता है और पेशेंट को तकलीफ कम होगी. अच्छा, ठीक होगी बात. एक तो ये ध्यान में रखें. ठीक होगी. दूसरी चीज रखें, जब भी इन्फ्लेमेशन होती है
तो इन्फ्लेमेशन के सेट नहीं होने में टाइम लगता है। शुरू में आपकी इट्स ऑलवेज इन्फ्लेमेशन इज पेरिटोनियस इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, जिसमें प्रोटीन्स होती हैं। शुरू में प्रोटीन्स इतनी निकल नहीं रही होती, तो देयर इज ओनली फ्लूइड। तो जब फ्लूइड हो तो उसमें चीजें तो चिपकती हैं थोड़ी बहुत, मगर आराम से सेपरेट हो जाती हैं क्योंकि फ्लूइड है, इट डजंट कॉज प्रॉब्लम। और क्योंकि फ्लूइड है तो जो जो आपकी टफ चीजें हैं वो आप डैमेज नहीं कर सकते सेपरेट करते हुए भी। बट वंस एन इन्फ्लेमेशन बिकम फिनस, एक्सुडेशन ज्यादा हो जाए तो फिर चीजें उसके बाद आके उस पर जमना शुरू हो जाती हैं। तो ये ऐसी है कि जैसे एक गोंद रखी हुई है और गोंद जमती है आपकी चंद दिनों में, एक दिन में नहीं। तो जब गोंद आपकी जम जाएगी तो फिर अगर आप चाहिए सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो आपके स्किल, आपके ओटी की कंडीशंस, आपको कौन से अल्लाह ताला ने नसीब किए हैं उस दिन आपको करने के लिए, लोग जो आपको करें असिस्ट करा रहे हो, कौन सा दिन का टाइम हो, इट डिपेंड्स अपॉन के हाउ कोई किसी को इंजर करते हैं या नहीं करते हैं, और कौन सी टेक्निक आप टेक्निकली इस्तेमाल करते हैं उस वक्त अक्लमंदी के साथ। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ इन्फ्लेमेशन देखें तो अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें कि गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन शुरू हुई, शुरू हुआ, वो चलना शुरू हो रहा है, और हमें ये पता है गले कि हमने टॉन्सिलाइटिस से देखा था, इट इज गोइंग टू टेक एटलीस्ट 2 days और 3 days। इट कांट बी अ क्लॉक कि 2 day पे खत्म हो 3 day पे शुरू, 2 to 3 days लगेंगे आपके। और उसके बाद कोलिसिस्टाइटिस जो है स्वीयर हो जाएगा, चीजें आना शुरू हो जाएंगी। सो अगर मुझे कोई चॉइस दे ऑपरेट करने के लिए तो मैं तो गॉल स्टोन्स को ऑपरेट उस पर करूंगा जब कोलिसिस्टाइटिस खत्म हो गया वो, या शुरू हुए पहले आपके सिर्फ 2 या 3 दिन हो, नॉट मोर देन दैट। So they are elective cholecystectomies, either early or late. So early would be when acute research has started and second or third day तक आगे नहीं गया हुआ, and late would be कि acute cholecystitis का इवेंट ठीक हो गया हुआ है, इन्फ्लेमेशन खत्म हो गई है। आप किसी को जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो there is fibrous adhesions and everything, when it subsides तो मैक्रोफेजेस को टाइम लगता है इन चीजों को खाने में, इस डेब्रिस को खत्म करने में, एंड नॉर्मली दैट इज 4 to 6 weeks। तो फिर जब इंसान को अगर ठीक हो जाए, 6 हफ्ते पास हो जाएं, 4 हफ्ते 6 हफ्ते पास हो जाएं, फिर दैट वुड बी इलेक्टिव। सो इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी हैज 2 times। अब दरमियान का जो टाइम है, आफ्टर 3rd day और जब शुरू हो जाता है, तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ सीवियर द कॉम्प्लिकेशन इज। If the severity of complication is so much कि you think the patient अगले दिन तक क्रैम हो जाएगा, तो then you have to do immediately। फिर आप अगले लिस्ट का इंतजार नहीं करेंगे, फिर तो आप ओटी में फोन करेंगे मुझे टाइम दो। ठीक, so that would be emergency cholecystectomy, जिसका एक्यूट एपेंडिसाइटिस इमरजेंसी इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर आपका कम है थोड़ा टाइम, लेट अस से पेशेंट खराब है, आपने उसको ऑपरेट करना है, मगर ऑपरेट करने से पहले जाहिर सी बात है उसको अपने बिल्ड भी करना है, और इतना खराब नहीं है कि परफोरेशन नहीं होगी भी, सिम्टम ऐसे हैं, तो देन नेक्स्ट अवेलेबल लिस्ट। सो दैट विल बी आल्सो कॉल्ड एज इमरजेंसी कोलिस्टेक्टमी। अब 2 वर्ड्स हैं, अर्जेंट एंड इमरजेंसी। which causes more panic, urgent or emergency? ये इमरजेंसी या अर्जेंट अगर मैं आपको कहूं तो आपका क्या मतलब होगा? Urgent will cause more panic, sir, because the emergency. So therefore, if you are not waiting for your list, you are doing on the same day, that will be urgent. But you can use both words. इस ऐसी कोई बात नहीं, ये बात कर ली। So इनमें से 3 में अब आप कौन सी करें कोलिस्टेक्टमी इसमें? Sir, I will do early cholecystectomy.
आज कितना दिन है ऑपरेशन का, इसका, इसकी बीमारी का? Sir, it's the 2 days. 2 days. 2 days have Mind passed you, since the mind you, episode of this 2 days. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने बात की. जब हम डेज की बात करें, इट इज Sir. नॉट द डे व्हेन द पेशेंट रिपोर्ट्स टू द हॉस्पिटल, इट इज द डे फ्रॉम व्हिच द सिम्पटम्स स्टार्टेड. Look, a patient may have a pain for last 4 days, Sir. 6 days, and he comes to hospital today. आप दाखिल करते हैं तो उसको 6 दिन हुए में डिजीज को, नॉट 1 day. उनके अस्पताल में वो 1 दिन पहले आया, तो पेशेंट में बी हैविंग अ कॉम्प्लिकेटेड एक्यूट कोलिस्टाइटिस. चांसेस ये होंगे. तो आप बता रहे हैं कि 2 दिन है, तो आपने इसमें कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, ठीक, और आप ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आई एग्री ऑन दैट, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस उसका है, बिल्कुल सही है. अच्छा जी, आप ओपन कोलिसिस्टेक्टमी करेंगे, कौन सी किस इंसिजन से करेंगे? Sir, I will do with the right transverse incision because I am comfortable with that. ठीक है. I have been doing with that. ठीक, तो 2 इंसिजन हो गए आपके, एक ट्रांसवर्स हो गया, सब कॉस्टल हो गया. Sir. My advice would be to choose the incision depending upon the patient. Purpose of incision is Sir. to have exposure of the gallbladder. Sir. Sir. अगर आपका मेन डिसेक्शन एरिया जो है, अगर आप उसको देखें, which is Callets, is not at the level of subcostal margin in mid clavicular line, it is pretty higher. ये आपके लोअर रिब के ऊपर करके पड़ा हुआ है, इसीलिए आप डीवर लगा के रिब केयर को खींचते हैं ना ऊपर. So you must see your skill. You must see the build of the patient. इतनी मोटी है, मोटी नहीं है, या मोटा है, मोटा नहीं है. You must see that angle of the costal margin, के एंगल क्या बन रहा है. You must see आपके ओटी का स्टेटस क्या है, लाइट वगैरह कैसी है. You must see कि आपके पहले असिस्टेंट कौन पड़ा है. Especially never ever compromise on these things. जबकि आप किसी वीआई पेशेंट को कर रहे हो, आप किसी अपने अजीज को कर रहे हो, यू विल नेवर रिग्रेट इट. आप लोगों को ट्रांसवर्स इंसिजन, अपर ट्रांसवर्स 2 सेंटीमीटर, 3 इंच, 2 इंच के इंसिजन लगते हैं. शुरू में यू गेट अ कॉन्सेप्ट कि दिस इज गुड एंड दिस इज वेरी, आराम से हो जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. वो इसलिए कि जब आपका कंसल्टेंट कर रहा होता है, उसके अगर रजिस्ट्रार खड़े होते हैं और वो जो डीवर्स को खींच रहे होते हैं, वो उन्हीं को पता होता है किस तरह खींच रहे हैं, अगर आपने असिस्ट करवाया हो तो. खास तौर पे जिसके नसीब में वो चेस्ट के ऊपर डीवर पड़ा हुआ और अपनी कोलिसिस्टेक्टमी करा रहा हो, तो जिसको कि ना के नजर आ रहा होता है अंदर, फिर भी वो उसको खींच रहा होता है और बार बार डांटे सुन रहा होता है, इसलिए कि उसका डीवर हिल जाता है, क्योंकि उसको साइड नजर नहीं आ रही होती. तो इन चीजों का आप ख्याल रखें. Okay, so what will be the length of incision? जी मोहसिन भाई, क्या हुआ? मोहसिन भाई किधर चले गए? Sir, can you hear me, sir? I can hear you. तो ये मुझे बताइए कि नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही, आपकी आवाज गड़बड़ कर रही है. ना ना, तबला बाजी रहा है. lateral border of rectus. चलें, आवाज तो इंसिजन जो है, देखें, इंसिजन ऐसा होना चाहिए कि आपका एक्सेस वहां तक पहुंचे. दैट इज इंपॉर्टेंट. तो आप सब कॉस्टल जी ट्रांसफर्स दें, इंसिजन शुड बी सो मच कि कैलेट्स ट्रायंगल का एरिया आपको क्लियर नजर आए. सर, पहली चीज, कोलिसिस्टेक्टमी के स्टेप्स की अगर भी बात करता है,
के स्टेप क्या है, अगर पहला स्टेप वो ये नहीं बताता कि पैकिंग है, तो इट मींस ही हैज नेवर सीन cholecystectomy or he doesn't know the significance. I think one of the most important step of cholecystectomy is exposure of callus triangle, and which is done by packing the viscera away from the callus triangle. Sir. ये फिर आप callus triangle में चले जाएं और callus triangle पे आप dissection करें, और dissection करके आप ensure हो कि bile duct और cystic duct कहाँ पे हैं, ये ना कि आप bile duct को बांध दें. अच्छा बताएं, cystic artery को पहले बांधेंगे या cystic duct को? आर्टरी को पहले इन्होंने जवाब दिया है cystic artery को पहले करेंगे, वो क्यों? Sir, because we want to clear the area with hemostasis. एक वजह आपने and better view of anatomy of cystic duct and CBD. ठीक, एक तो ये वजह भी ठीक हो, बिल्कुल सही आपने बताई. मेन वजह ये है कि आप उसको पहले कर देते हैं तो एरिया वो कैलस ट्रायंगल का वो इनसे जो होता है. दूसरी एक चीज बताएं कि विच इज मोर स्ट्रॉन्ग, सिस्टिक डक्ट या सिस्टिक आर्टरी? सर सिस्टिक डक्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग सर. एग्जैक्टली. अब प्रॉब्लम ये होती है कि चूंकि आप जब नेक को कैलस ट्रायंगल को आप एक्सपोज कर रहे होते हैं, तो आपने नेक को पकड़ा होता है गॉल ब्लैडर के और उस पर जोर लगा रहे होते हैं, और जोर लगा रहे होते हैं आप यूजुअली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ताकि क्लियर हो. अगर आप सिस्टिक डक्ट को पहले लाइगेट कर दें तो ज्यादा जोर लगता है उसके ऊपर, एंड देन इट आर्टरी कैन रप्चर. तो बेसिकली इसलिए आप पहले कर लेते हैं. चूंकि ये खत्म होने वाला है टाइम, सो लेट मी देन फिनिश इट ऑफ. फिर दूसरा ये है कि अगला पॉइंट ये आ जाता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो वन शुड गो फंडस फर्स्ट, वो ज्यादा आसान रहता है सर. और इसके अलावा ये भी एक पॉइंट आ जाता है कि अगर आपके नसीब ऐसे हैं, आपने खोला बहुत एडिशंस हैं, यू हैव मिसचार्ज द ट्यूमर और कैलस ट्रायंगल कुछ भी नहीं हो रहा, then possibly there are two safe options which you can do. Either do a subtotal cholecystectomy, कि आप नीचे से चले जाएं सेफली जहां तक जा सकते हैं, कैलस ट्रायंगल को आप डिस्टर्ब ना करें, और नेक पे जाके आप उसको काटें, सारे स्टोन्स को निकाल दें, और नेक को अंदर से आप जहां पे सिर ओपन कर रही है क्लोज कर दें. और अगर आप इमरजेंसी में कर रहे हैं और ये भी नहीं हो सकता, पेशेंट बहुत खराब है, द मिनिमम रिक्वायर्ड वुड बी कोलेसिस्टोस्टमी. दैट वुड बी मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आप खोलें, तमाम स्टोन्स को रिमूव कोलेसिस्टोस्टमी करें. बट दिस इज वेरी वेरी रेयर कि आप एक्यूट कोलेस्टेटल में कोलेसिस्टोस्टमी करें, या बट सब टोटल यू हैव टू डू बिकॉज ऑफ मिस जजमेंट, कि क्योंकि एक्चुअली इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा होती है और ये चीज नहीं होती. सो व्हाट वी आई एम गोइंग टू डू इज नाउ कि आज का ये अब सेशन हम खत्म करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू डिस्कशन ऑन दिस थिंग नेक्स्ट टाइम फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड. हम ये कर लेंगे इसको, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस नाउ इस जो अगर चीज बड़ी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड करने वाली है कि, or we can do this thing is if somebody can present me a case of stones in the gallbladder, stones in the CBD, a cause of jaundice, something like that, तो हम उसको डिस्कस करके we may continue discussion from this point onward. I might if I find time this week, ये तो मैं अभी आपके YouTube पे कर दूंगा मैं, एंड इसका नाम मैंने रखा हुआ है FCPS मीटिंग्स, शुक्र एजुकेशन FCPS मीटिंग्स. आप जो वीडियो YouTube पर देखेंगे वो साथ इसका नाम लिखा होगा, ताकि आप ये भी देख लीजिएगा. एंड इफ आई कैन फाइंड सम टाइम एंड आई कैन मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन यू व्हिच वी हैव डिस्कस्ड टुडे, कि हाउ टू स्टेप वाइज अप्रोच टू अ केसेस ऑफ गॉलस्टोन्स,
So we have covered, in fact, first step, okay, when you're going to suspect patient is a gallstone, then second step would be कि कौन सी disease stone ने cause की है और फिर investigate किस तरह करना है. This we are going to do. Okay, then have a good day. Enjoy yourself. धूप निकली हुई है बड़ी प्यारी यहाँ पे पिंडी में, तो एंजॉय करो, साथ मौसमियाँ खाओ, कीनू खाओ, और खबरदार आज संडे वाले दिन किसी ने पढ़ाई की. इसके बाद must relax, not to relax at least once a week or 2 days in a week. तो जब तक ये खुद ब खुद खत्म नहीं होता, कोई जनरल गपशप मेरे साथ लगाना चाहे तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि 6 मिनट रह गए. Hello. Thank you. Sir, I would like to ask a question.